Health Minister Mansukh Mandavia has reached Ram Manohar Lohia Hospital ahead of increasing COVID cases in the country. This comes after the Health Ministry announced a COVID mock drill today at hospitals across states. Mansukh Mandavia has reached the RML hospital in the national capital for the COVID mock drill that will be held today. So amidst the rising COVID numbers in the country, a COVID mock drill to be held today. Mansukh Mandavia, Union Health Minister, reaching the Ram Manohar Lohia Hospital for that. So clearly, the Health Minister has arrived there to check COVID preparedness at that hospital in the national capital. This is an exercise that will be conducted across the country today. Amidst the rising number of COVID cases in the country, a mock drill has been announced for today and tomorrow to check COVID preparedness of hospitals. Both private and government hospitals expected to participate in this exercise. So these remain, of course, the big developments we are tracking for you on the program. You can clearly see, of course, Mansukh Mandavia there, who has arrived at the RML hospital. And the Union Health Minister, remember, had just chaired a virtual meeting with state health ministers a few days ago. He had asked them to ramp up testing, monitor cases of illnesses, to identify emerging hotspots and ensure readiness of hospital infrastructure. From today, all the way till tomorrow, there will be mock drills across the country. State health ministers will also be participating in those mock drills to review the preparedness. And so is the health minister of the country, who is leading from the front, who has arrived there at the RML hospital in Delhi. Remember, with 5,351 new COVID infections in the last 24 hours, India's tally has climbed further. I'm being told Manohar Kesri is finally joining us now on the broadcast. Manohar, big developments coming in from RML. Health Minister Mansukh Mandavia has reached for the COVID mock drill today. All right, it seems we've lost Manohar there. Remember, I just chaired a virtual meeting with state health ministers a few days ago. He had asked them to ramp up testing, monitor cases of illnesses, to identify emerging hotspots and ensure readiness of hospital infrastructure. From today, all the way till tomorrow, there will be mock drills across the country. State health ministers will also be participating in those mock drills to review the preparedness. And so is the health minister of the country, who is leading from the front, who has arrived there at the RML hospital in Delhi. Remember, with 5,351 new COVID infections in the last 24 hours, India's tally has climbed further. I'm being told Manohar Kesri is finally joining us now on the broadcast. Manohar, big developments coming in from RML. Health Minister Mansukh Mandavia has reached for the COVID mock drill today. All right, it seems we've lost Manohar there, but we're getting ground reports as well on this story now coming in.
देश भर के कई इलाकों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो बच्चे हैं उनमें कोविड से संक्रमित बच्चे जो हैं उनकी संख्या ज्यादा आ रही है। आपको बता दूं, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ये तस्वीरें आपके दिल को हिला सकती हैं, क्योंकि यहां पर इस वक्त गांधीनगर जो कोविड हॉस्पिटल है, हम वहां पर हैं। आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा है, उसे कोविड की जो है वो कोविड पॉजिटिव आया है, उसके बाद यहाँ पे एडमिट किया गया है। इसी तरह से यहाँ पर 3 बच्चे हैं जो एडमिट हैं, जिनमें से एक बच्चा जो है उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है, जो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से कोविड एक बार फिर से जो दस्तक दे रहा है ये कितना घातक हो सकता है। क्योंकि पिछले जो कोविड वेव्स हुए हैं उसमें कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कई लोग जो हैं उस वक्त इस संक्रमण के चलते कई महीनों तक जो है बीमार रहे और पूरी तरह से वो कहीं ना कहीं उस चीज से उभर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त स्थिति बन रही है, लगातार जो मामले आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो यहां पर एक बार फिर से जो है चीजों को पूरे तरीके से जो है वो स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोविड के मामले यहां बढ़े तो उसको जो है कंट्रोल किया जा सके। आप देखेंगे अस्पतालों के अंदर आने वाले पेशेंट को देखते उनकी एंट्री पर ही इसी तरह से सैनिटाइजर मशीन्स लगा दी गई हैं, ये ऑटोमेटिक डिस्पेंसर्स लगाए गए हैं। मकसद बड़ा साफ है, को बाहर से अंदर आता है या अंदर से बाहर जाए तो संक्रमण किसी भी तरीके से जो है वो फैलना नहीं चाहिए। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अरुण शर्मा हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हैं गांधीनगर हॉस्पिटल के, उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से आपके पास इस वक्त प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि बच्चे खासतौर पर देख रहा हूँ काफी दिनों से यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं जो कोविड संक्रमित हैं। बच्चे हमारे पास इसलिए एडमिटेड है क्योंकि ये मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है। हमारे पास बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन ही एडमिट होगी। जो भी शालामार हॉस्पिटल में आप बच्चे चेक कराने को आते हैं, उनके टेस्ट किए जाते हैं। अगर कोई सिक पेशेंट है तो और पॉजिटिव आता है तो यहाँ मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल जो गांधीनगर का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे उनको रखने का प्रोविजन है। अपने एक फ्लोर जो 3rd फ्लोर आप देख रहे हैं उसमें 80 बेड्स का हमने प्रोविजन रखा है। सारे बेड्स पे ऑक्सीजन सप्लाई है, मोनीटर्स है, वेंटिलेटर्स लग सकते हैं। एंड हम यहाँ पे इसको फिलहाल कोविड के पेशेंट जो 3rd फ्लोर में कर रहे हैं, बाकी फ्लोर्स पे हमारे नॉन कोविड है। एट ए टाइम हमारे पास इस समय 100+ पेशेंट्स में टोटल एडमिटेड। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, कोविड के जब पहले वेव्स आए थे उस वक्त भी लोगों ने जब सरकार का साथ दिया और ठान लिया कि कोविड को हराना है तो कामयाबी मिली। मगर आज अगर कोविड के मामले फिर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो यकीनन एक बार फिर से हमें उसी तरह के प्रिकॉशंस लेने होंगे, यही हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहा है। वरना जो तस्वीरें आप इस वक्त वार्ड्स में देख रहे हैं वो अपने आप में बताती हैं कि कितना जरूरी है उन प्रिकॉशंस को, उन गाइडलाइंस को पर अमल करना। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। Manohar Kesri is joining us live now on the broadcast. Manohar, has the Union Health Minister arrived at RML? We saw those visuals a short while back. Has the COVID mock drill now begun under his supervision? देखिए, बिल्कुल आज देश भर में कोरोना की तैयारियों को लेकर के मॉक ड्रिल हो रहा है और अभी मौजूद है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो दिल्ली में मौजूद है। केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यहाँ पर मौजूद है। और ये आप देखिए, उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी के अलग अलग सेंटर पर जा कर के उन्होंने जायजा लिया क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह से टेस्टिंग की जा रही है, क्या जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी हो रही है। उसके बाद इमरजेंसी के सेंटर्स के बाद, स्क्रीनिंग सेंटर्स के बाद ये कोविड का जो एरिया है, ट्रायज एरिया है, अंदर जाने का अलाउड माफ कीजिएगा, लेकिन उन्होंने एक एक करके सारे सिस्टम का जायजा लिया और माफ कीजिएगा, कोविड को लेकर के जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, आज भी देश में 5880 मामले आए हैं और लगातार मौत हो रही है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री लोगों को जागरूक करने के लिए अस्पतालों में क्या कमियां हैं, अगर जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, जिस लगातार ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, पिछले 1 हफ्ते में 2 गुना मामले हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आज वो यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। और अस्पताल प्रशासन को उन्होंने बताया भी है कि जहाँ जो कमियां हैं, जहाँ मैन पावर्स लगाने हैं, जहाँ पर सेंटर बढ़ाने हैं, उन सब को लेकर के उन्होंने आदेश भी दिए हैं और लोगों को कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि
अगर देखें तो अभी मात्र जो है सो करीब 12 से 14% ही यहाँ पर भर्ती हैं। अब पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो पूरी दिल्ली में जितने बेड कैपेसिटी है उसका मात्र 2% यानी 2% ही ऑक्यूपाइड है। 98% कोविड डेडिकेटेड बेड्स खाली पड़े हुए हैं। लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। मेरी बात यहाँ के डॉक्टरों से हुई है, उनका ये कहना है 3 से 4 दिन यहाँ पर मरीज भर्ती हो रहे हैं जिन्हें ज़रूरत है, और ख़ास करके कुछ बच्चे भी इसमें शामिल हैं। 3 से 4 बच्चे यहाँ थे जो करीब करीब ठीक भी हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रोटोकॉल है उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और उसके बाद जो है वो कोविड पे लगाम लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये बेहद ज़रूरी है मनोहर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना मामले जो हैं देश में लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के संग भी बैठक कुछ दिन पहले रखी थी। क्या अन्य राज्यों में भी ये ड्रिल जो है प्रारंभ हो चुका है? क्या अन्य राज्य स्वास्थ्य मंत्री भी वहां जाएंगे अस्पताल जायजा लेने खुद, जैसे हम देख रहे हैं मनसुख मंडाविया पहुंचे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक ली थी और उन्हें कहा गया था कि 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को इस तरह की मॉक ड्रिल की जाएगी। तो आज कई राज्यों में इस तरह के मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री या जो भी अधिकारी हैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं कि जो वहाँ का प्रिपरेशन है, खास करके कोविड वार्ड का, आईसीयू में बेड्स का, वहाँ के वेंटिलेटर का, मॉनिटर का, बीपी मशीन का, ऑक्सीजन सिलेंडर का, इन तमाम, और ख़ास करके दवाइयों का, तो इन सब को लेकर के सभी राज्य अलर्ट मोड पे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी राम मनोहर लोहिया में अभी उपस्थित है और सभी चीज़ों को लेकर के बारे में तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, लोग यहाँ पर जितने लोग हैं कोई भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। एक दो गिने गुथे लोग हैं। इनसे एक बार हम पूछ लेते हैं, क्योंकि लगातार सरकार भी कह रही है, हालांकि सरकार ने मैंडेट नहीं किया है। कुछ राज्यों में जो एरिया है जहां पर कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उनमें मास्क मैंडेट किया गया है। लेकिन लोगों से हम बात एक बार कर लेते हैं। आप लोग बताएंगे कि आप लोग मास्क अस्पताल आए हुए हैं, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क है ही नहीं अभी। नहीं है तो लगाएंगे, इससे भी तो मुंह ढक सकते हैं आप। ढक लेंगे। देखिए, सुरक्षा ही बचाव है। अगर हम अस्पताल में आते हैं, यहाँ पर कई तरह के वायरस होते हैं, पास में कोविड वार्ड भी हैं, ट्राइस एरिया भी हैं, आईसीयू भी हैं, इमरजेंसी भी हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग अपने और से अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी अगर लापरवाही बरतते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कोविड का जो ये सब लीनेज है जो ओमिक्रॉन का है उनके अलग पार्ट में म्यूटेशन हो चुका है, तो इनका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ये कोमॉर्बिड के पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। जो ज़्यादातर मौत की खबर आ रही है उनमें से लोग कोमॉर्बिड के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के हैं, हार्ट के हैं, न्यूरो संबंधित बीमारियों के। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग यही कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी कहा है कि हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ मैंडेट करने की ज़रूरत है, लोगों को खुद ध्यान देने की ज़रूरत है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.